تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المؤمنین۔ انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ مثنیٰ سے مخاطب ہوئے، اور تم مثنیٰ واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی، جو تم شبخون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المؤمنین۔ مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے، ان کی دونوں نئی بیویاں لیلہ ام تمیم اور بنت مجاعہ ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مثنیٰ بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ بھی شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المؤمنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لوں کہ مثنیٰ ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مثنیٰ شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مثنیٰ اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف ہونے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمین دوز کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مثنیٰ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان کی مدد کو پہنچے۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المؤمنین، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مثنیٰ نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شبخون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مثنیٰ نے کیا ہے، وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے، یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مثنیٰ کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرے یہ کہ زرتشت مثنیٰ اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مثنیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں، اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مثنیٰ کی مدد کو پہنچیں اور بیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھیں، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کریں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں، انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔
میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا، باہر صورت بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ، اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں، تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا، ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، میں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے، اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی، جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عزم اور ایمان کے پکے تھے، انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے، انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں، یہ مسلمان مجبوری اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ وہ پہلی کی طرح مظلوم اور مقہور رہے جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں، لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچیاں اور کمان بنانے لگے۔ انہیں مثنہ بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مثنہ کے چھاپہ ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچیاں اور تیر کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شب خون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان درپردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو ان کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے، 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصد نے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ امیر المؤمنین ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلدی چلی جانی چاہیے، 2,000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ قیقاع بن عمر کو بلاؤ۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گٹھے ہوئے جسم کا ایک قداور نوجوان خلیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ قیقاع امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اس سے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ یا امیر المؤمنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو، صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قیقاع رضی اللہ عنہ بن عمر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قیقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قیقاع رضی اللہ عنہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ سے نکل گئے۔ مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق، واقدی اور سیف ابن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار ایاز بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک آدمی عبد بن افل حمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا تھا جو قیقاع رضی اللہ عنہ کو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے پر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا، اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔
اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برسر پیکار رہی۔ اس فتنے کو وعظوں اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا، اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے دو طاقتور قبیلوں مفر اور ربیہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ صرف ایک آدمی؟ قیقاع رضی اللہ عنہ بن عمرو جب خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المؤمنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں، اور خلافت مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو زرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار قیقاع رضی اللہ عنہ نے کہا، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دیں، جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمسار نہیں کروں گا، میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ مثنیٰ میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدائے عز و جل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم میں جاہ و جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے یمامہ کے ایک میدان میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مجاہدین اسلام، خالد رضی اللہ عنہ اپنی اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جنہیں اپنے گھر اور اپنے مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں، انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے، اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے، بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے، احد میں بھی مسلمان تھوڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن کے قبیلے کا فرد تھا، تم میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ امیر المؤمنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا۔ تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ ازدی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن تاثیر نے، جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں، اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی واز کی یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔
इनमें बेशतर ऐसे थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बायत की और इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लड़ाइयाँ लड़ी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो यूं महसूस करते जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस उनकी क़यादत कर रही हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहदाइयों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाजत से एक काम ये भी किया कि घोड़ों पर सवार होकर यमामा के गिरदो नवाह में निकल गए और बस्ती बस्ती जाकर लोगों को घुड़सवारी के मुख्तलिफ करतब दिखाने लगे। मसलन दौड़ते घोड़े से उतरना और सवार होना, सरपट दौड़ते घोड़ों से निशाने पर तीर चलाना, नेजाबाजी और घोड़ों को दौड़ाते हुए तेगजनी के कमालात। वो नौजवानों को फौज में भर्ती हो जाने पर उकसाते और उन्हें बताते कि जंग में जाकर उन्हें क्या क्या फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा उन लोगों को ये भी बताते थे कि वो फौज में भर्ती ना हुए तो ईरानी आकर उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे, जो उनसे बेगार लेंगे और उन्हें देंगे भी कुछ नहीं, और उनकी जवान बहनों, बीवियों और बेटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया करेंगे। इस खित्ते ने ईरानियों का दौरे हुकूमत देखा था, फिर उन्होंने झूठे पैगंबर की शोबदेबाजियां देखी थी और अब वो मुसलमानों की हुकूमत देख रहे थे। मुसलमानों ने उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की थी। उनके अंदाज, तौर तरीके और रहन सहन बादशाहों जैसे या हुक्मरानों जैसे नहीं थे। वो आम लोगों की तरह रहते, आम लोगों के साथ बातें करते और उनकी सुनते थे। उनकी औरतों की इज्जत महफूज थी। इन लोगों में वो भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मुसैलमा जैसे शोबदाबाज ने उन्हें गुमराह किया और इस्लाम के रास्ते से हटा लिया था। उन्होंने मुसैलमा की नबुव्वत को मुसलमानों के हाथों बेनकाब होते देखा और मुसैलमा की जंगी कुव्वत को मुसलमानों की कलील नफरी की बेजिगरी के आगे रेजा रेजा होते देखा था, और वो महसूस कर रहे थे कि सच्चा अकीदा और नजरिया इस्लाम ही है, जो झूठ की ताकतों को कुचल देता है, और वो गैबी ताकत जो सच्चे को झूठे पर, हक को बातिल पर फतह देती है, वो इस्लाम में मुज़मिर है। चुनाचे ये लोग खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में शामिल होने लगे। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन की कोशिशों का हासिल था। यमामा में शोर उठा, कुछ लोग दौड़ते हुए बस्ती से बाहर चले गए, औरतें छतों पर जा चढ़ी, उफक की गर्द की घटाएं उठ रही थीं और यमामा की तरफ बढ़ रही थीं। आंधी आ रही है, लश्कर है, किसी का लश्कर आ रहा है, होशियार, खबरदार, तैयार हो जाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक किला नुमा मकान पर जा चढ़े। ये आंधी नहीं, किसी की फौज थी। मुर्तद्दीन के सिवा और किसकी फौज हो सकती थी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अफसोस होने लगा कि किस बुरे वक्त में उन्होंने अपनी फौज से कहा था कि जो घरों को जाना चाहते हैं चले जाएं। गर्द के जो बादल उठते नजर आ रहे थे, ये बहुत बड़े लश्कर की गर्द थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ 2000 नफरी थी, या वो नफरी थी जो अभी अभी फौज में शामिल हुई थी। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन और हो भी क्या सकता था। यमामा की आबादी थी, इसमें लड़ने वाले आदमी मौजूद थे, लेकिन ये खतरा भी मौजूद था कि ये लोग दुश्मन से मिल जाएंगे, और ये खतरा भी कि ये पीठ पर वार करेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किला नुमा मकान की छत से ललकार कर कहा, बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त आ गया है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चुप हो गए, क्योंकि उन्हें दफों और ढोलों की धमक सुनाई देने लगी थी। हमला आवर दफ बजाते नहीं आया करते, धमक बुलंद होती जा रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उधर देखा, गर्द बहुत करीब आ गई थी और उसमें छुपे हुए ऊंट और घोड़े नजर आने लगे थे। गर्द के दबीज पर्दे में आने वाला लश्कर नारे लगाने लगा, इस्लाम के पासबानों। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, अल्लाह की मदद आ रही है, आगे बढ़ो, इस्तकबाल करो, देखो ये कौन है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते नीचे उतरे, अपने घोड़े पर कूदकर सवार हुए और घोड़े को एड़ लगाकर बस्ती से निकल गए। आने वाला लश्कर बस्ती से कुछ दूर रुक गया और 2 घुड़सवार आगे बढ़े। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन तक पहुंचे और घोड़े से उतरे। वो दोनों सवार भी उतर आए। वो मुदर और रबिया कबाइल के सरदार थे। मदीना से इत्तला आई थी कि तुम्हें मदद की जरूरत है। एक सरदार ने कहा, मैं 4000 आदमी साथ लाया हूँ, इनमें शुतर सवार भी हैं, घुड़सवार भी हैं और प्यादे भी, और 4000 की तादाद मेरे कबीले की है। दूसरे सरदार ने कहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरते मुसर्रत से दोनों को अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से कांपती हुई आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अब 10,000 नफरी का लश्कर जमा हो गया था। उन्होंने मुदर और रबिया के सरदारों को अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें कहाँ जाना है और दुश्मन कितना ताकतवर है। हम तुम्हारी मदद को आए हैं वलीद के बेटे। एक सरदार ने कहा, हमारी मंजिल वही है जो तुम्हारी है। मदीना से हमें इत्तला मिली है कि अमीर लश्कर तुम हो। दूसरे सरदार ने कहा, जहाँ कहोगे चलेंगे, दुश्मन जैसा भी होगा लड़ेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरानी सल्तनत के एक हाकिम हुर्मुज के नाम पैगाम लिखवाया। उस वक्त इराक ईरान की शहनशाही का एक सूबा था। इसका हाकिम या अमीर हुर्मुज था, जिसकी हैसियत आजकल के गवर्नर जैसी थी।
اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، وہ بڑا ہی بدتینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو، اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے، اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد ان کی منتظر ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مذعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مثنہ بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہے ہیں اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مثنہ بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے نوجوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شبخون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو انہوں نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی جو مدینہ کے ایک سالار علا بن حضرمی کے دوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مثنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شبخون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی کہ مدینہ کے سالار خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچھی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہو جلال کو پہچان نہ سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گنوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا روب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازراہ مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑمڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہرقل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کریں؟
मुझे सालार आला ने सिर्फ ये हुक्म दिया था कि ये पैगाम हुर्मुज तक पहुंचाकर उसका जवाब लाऊं। एलची ने कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। तुम जैसे एलची के साथ हम ये सलूक करते हैं कि उसे कैद खाने में फेंक देते हैं। हुर्मुज ने कहा, अगर हम रहम करें तो उसे कैद खाने की अजियत से बचाने के लिए जल्लाद के हवाले कर देते हैं। मेरी जान मेरे अल्लाह के हाथ में है। एलची ने पहले से ज्यादा जुर्रत से कहा, अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हें इल्म होता कि मेहमान के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन अल्लाह के मुनकर और आग के पुजारी से इससे बेहतर सलूक की तवक्को नहीं की जा सकती। मुझे जल्लाद के हवाले कर दो, लेकिन ये सोच लो कि मुसलमान मेरे और मेरे मुहाफिजों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेंगे। हुर्मुज बुदक कर सीधा हो बैठा। गुस्से से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। वैसी ही सुर्खी उसके चेहरे पर भी आ गई, जैसे कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के उस एलची को कच्चा चबा जाएगा। निकाल दो इसे हमारे दरबार से, हुर्मुज ने गरज कर कहा। 4-5 दरबारी जिनके हाथों में बर्छियां थीं तेजी से आगे बढ़े। एलची के दोनों मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ली। पहले वो दोनों एलची के पीछे खड़े थे, अब वो एलची के पहलुओं में इस तरह खड़े हो गए कि उनकी पीठें एलची की तरफ थी। हुर्मुज, एलची ने बारोब आवाज में कहा, जंगजू मैदान जंग में लड़ा करते हैं, अपनी ताकत का घमंड अपने दरबार में ना दिखा। मुझे अपने सालार के पैगाम का जवाब मिल गया है। तुझे हमारी कोई शर्त कबूल नहीं, क्या यही तेरा जवाब है? निकल जाओ इस दरबार से। हुर्मुज ने गुस्से से कांपती हुई बुलंद आवाज से कहा, अपने सालार से कहना कि मेरी ताकत को मैदान जंग में आजमा ले। हुर्मुज के बर्छी बरदार दरबारी उसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफिजों ने तलवारें न्यामों में डाल ली। एलची पीछे को मुड़ा और तेज कदम दरबार से निकल गया। दोनों मुहाफिज उसके पीछे पीछे जा रहे थे। हुर्मुज ने मुट्ठी खोली जिसमें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम चुड़मुड़ किया हुआ था। चूंकि ये पैगाम बारीक खाल पर लिखा हुआ था, इसलिए ये मुट्ठी खोलते ही सीधा हो गया। हुर्मुज ने ये पैगाम फारस के शहनशाह और शेर की तरफ इस इत्तला के साथ भेज दिया कि वो मुसलमानों से मुकाबले के लिए फौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है और वो मुसलमानों को सरहद से दूर ही खत्म कर देगा। हुर्मुज का इकबाल बुलंद हो। उसके एक दरबारी ने कहा, जिस दुश्मन को आप सरहद से दूर ही खत्म कर देना चाहते हैं वो पहले ही सरहद के अंदर मौजूद है। हुर्मुज ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये वो अरबी मुसलमान हैं, उस दरबारी ने कहा, जो दजला और फरात के उस इलाके में आबाद हैं जहां ये दोनों दरिया मिलते हैं। ये इलाका उबला तक चला जाता है। उन्होंने कभी की सल्तनत ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। मदीना वालों ने हम पर हमला किया तो ये मुसलमान उनसे मिल जाएंगे। मैं एक अर्ज करने की जरूरत करता हूँ, एक फौजी मुशीर ने कहा। कई दिनों से इत्तलाएं मिल रही हैं कि मुसलमान जो लड़ने के काबिल हैं यानी जवान हैं वो अपनी बस्तियों से गायब होते जा रहे हैं। वो यकीनन मुसन्ना बिन हारिसा तक पहुंच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। क्या तुमने फरार का ये सिलसिला रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है? हुर्मुज ने पूछा। फौजी दस्ते बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, फौजी मुशीर ने जवाब दिया। इसके बावजूद मुसलमान गायब हो रहे हैं। हुर्मुज ने गुस्से और तंज से कहा, सरहदी चौकियों को अभी हुक्म भेजो कि मुसलमानों की बस्तियों पर छापे मारते रहें। हर बस्ती की तमाम आबादी को बाहर निकाल कर देखें कि कितने आदमी गायब हैं और कब से गायब हैं। जिस घर का आदमी गायब हो उस घर को आग लगा दो। कोई मुसलमान सरहद की तरफ जाता नजर आए तो उसे पकड़कर कत्ल कर दो या दूर से उस पर तीर चला दो। उस इलाके में मुसलमानों की एक बस्ती थी जो सरहद के बिल्कुल करीब थी। ईरानी फौज की थोड़ी सी नफरी ने उस बस्ती में जाकर ऐलान किया कि बच्चे से बूढ़े तक बाहर निकल आए। सिपाहियों ने घरों में घुस घुस कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। औरतों को अलग और मर्दों को अलग खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों का अंदाज बड़ा ही जालिमाना था। वो गालियों की जबान में बात करते और हर किसी को धक्के दे देकर इधर से उधर करते। उन्होंने ऐलान किया कि उन आदमियों के नाम बताए जाएं और उनके घर दिखाए जाएं जो बस्ती में नहीं है। तमाम आबादी खामोश रही। जवाब दो, ईरानी कमांडर्स ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसे कोई जवाब न मिला। कमांडर ने आगे बढ़कर एक बूढ़े आदमी को गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और उससे पूछा कि इस हुजूम में कौन कौन नहीं है। मुझे मालूम नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। कमांडर ने न्याम से तलवार निकालकर बूढ़े के पेट में घोंप दी और तलवार जोर से बाहर को खींची। बूढ़ा दोनों हाथ पेट पर रखकर गिर पड़ा। कमांडर फिर एक बार लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ। अचानक एक तरफ से 8-10 घुड़सवार सरपट घोड़े दौड़ाते आ गए। उनके सवारों के हाथों में बर्छियां थी। ईरानी फौजी देखने भी न पाए थे कि ये कौन हैं। उनमें से कई एक के जिस्मों में बर्छियां उतर चुकी थीं और घोड़े जिस तरह आए थे इसी तरह सरपट दौड़ते बस्ती से निकल गए। ईरानी फौजियों की तादाद 40-50 थी। उनमें भगदड़ मच गई। उनमें से 8-10 जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। घोड़ों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी जो दूर हटती गई और अब फिर करीब आने लगी थी। अब फौजियों ने भी बर्छियां और तलवारें तान ली और इस तरफ देखने लगे जिधर से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। पीछे से बस्ती की आबादी उनके ऊपर टूट पड़ी।
उन सिपाहियों में से वही जिंदा रहे जो किसी तरफ भाग निकले थे। जब सवार बस्ती में पहुंचे तो उन्हें घोड़े रोकने पड़े, क्योंकि उनकी राह में बस्ती के लोग घायल थे जो ईरानी फौजियों का किश्तो खून कर रहे थे। इससे पहले मुसलमानों ने यूं खुले बंदों ईरानी फौज पर हमला करने की जुर्रत कभी नहीं की थी। एक ईरानी सिपाही पर हाथ उठाने की सजा ये थी कि हाथ उठाने वाले के पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता था। अब यहाँ के मुसलमान इसलिए दलेर हो गए थे कि उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना की फौज आ गई है। जिन सवारों ने ईरानियों पर हमला किया था वो कुछ इस बस्ती के रहने वाले जवान थे, कुछ दूसरी बस्तियों के थे। ये महज इत्तेफाक था कि वो मुसन्ना बिन हारिसा की तरफ जाते हुए उस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बस्ती की आबादी को बाहर खड़े देखा और ईरानी फौजियों को भी देखा। वो छुपकर आगे निकल सकते थे, लेकिन ईरानी कमांडर ने बूढ़े के पेट में तलवार घोंपी तो सब ने आपस में सलाह मशवरे किए और घोड़ों के रुख इस तरफ कर लिए। ईरानी फौजियों ने तो उन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। ये अल्लाह की मदद थी जो उस मजलूम बस्ती को बर वक्त मिल गई थी। ये बस्ती तो खुशकिस्मत थी कि उसे मदद मिल गई और ईरानियों की भयानक सजा से बच गए। मुसलमानों की दूसरी बस्तियों पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। हर बस्ती के हर घर की तलाशी हो रही थी। ये देखा जा रहा था कि कितने आदमी गायब हो चुके हैं। हर बस्ती में ईरानी कई आदमियों को कत्ल कर रहे थे। बाज मकानों को उन्होंने नजरे आतिश भी कर दिया था। 3-4 रोज ये सिलसिला चला। इसके बाद ईरानी फौज को बस्तियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत न मिली। हुर्मुज अपनी फौज लेकर आ गया। सरहदी फौज को भी उसने अपने साथ ले लिया और सरहद से निकल गया। उसका इरादा ये था कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को वो सरहद से दूर रोक लेगा। हुर्मुज की पेशकदमी बहुत तेज थी। मार्च 633 ईस्वी का तीसरा हफ्ता था जब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने यमामा से 10,000 फौज लेकर कूच किया था। ये मुहर्रम 12 हिजरी का महीना था। उनकी पेशकदमी भी बहुत तेज थी। हुर्मुज अपनी फौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर काज़मा के मुकाम पर पहुंच गया और फौज को वहीं खैमजन कर दिया। ये मकाम यमामा और उबला के रास्ते में पड़ता था। हुर्मुज को मालूम नहीं था कि उसकी पेशकदमी को देखने वाले मौजूद हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी काज़मा से दूर थे कि उन्हें इराक की समत से आते हुए 2 शुतर सवार मिले। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि ज़रतश्तों की फौज काज़मा में खैमजन है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहीं से रास्ता बदल दिया। ये शुतर सवार मुसन्ना के भेजे हुए थे। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ये भी बताया कि वो हफीर के मुकाम तक इस तरह पहुंच जाए कि ज़रतश्तों की फौज के साथ उसकी टक्कर ना हो। शुतर सवारों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक खुशखबरी ये सुनाई कि उनके लिए 8,000 नफरी की फौज तैयार है। ये फौज इस तरह तैयार हुई कि मुसन्ना बिन हारिसा, मज़ऊर बिन अदी, हरमला और सुलमा ने 2-2 हजार लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज की तादाद 18,000 हो गई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी पेशकदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काज़मा के दूर से गुजरकर हफीर तक पहुंच सकें, लेकिन हुर्मुज के जासूस भी सहरा में मौजूद थे। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को दूर के रास्ते से जाते देख लिया। आगे वो रास्ता था जो हफीर से नब्बाज की तरफ जाता था। हुर्मुज ने अपनी फौज को खैमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक्त में हफीर की जानिब कूच करने का हुक्म दिया। हफीर के इर्द गिर्द पानी के कुएं मौजूद थे। हुर्मुज ने वहां खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले पहुंचकर खैमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी हफीर से कुछ दूर थे कि एक बार फिर दोनों शुतर सवार उनके रास्ते में आ गए और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तला दी कि दुश्मन हफीर के मुकाम पर पानी के कुएं पर काबिज हो चुका है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ और आगे जाकर ऐसी जगह पड़ाव का हुक्म दे दिया जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिल सकती थी। फौज ने वहां पड़ाव तो डाल दिया, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया गया कि फौज में बेइत्मीनानी पाई जाती है कि पड़ाव ऐसी जगह किया गया है जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। मैंने कुछ सोचकर यहाँ पड़ाव किया है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तमाम लश्कर से कहो कि अगर दुश्मन पानी पर काबिज है तो परेशान ना हो। हमारी पहली लड़ाई पानी के लिए होगी। पानी उसी को मिलेगा जो जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। तुमने दुश्मन को पानी से महरूम कर दिया तो तुम समझो कि तुमने जंग जीत ली। सालारे आला का ये पैगाम सारे लश्कर को सुना दिया गया और सब एक खूंरेज जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब लश्कर की नफरी 18,000 हो गई थी। मुसन्ना बिन हारिसा, मज़ऊर बिन अदी, हरमला और सुलमा 2-2 हजार आदमी साथ लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से आ मिले थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो एलची हुर्मुज के पास भेजा था वो भी इसी पड़ाव में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और बताया कि हुर्मुज ने उसके साथ कैसा तौहीन आमेज सलूक किया है। इसकी 1 लाख दिरहम की टोपी ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जो पास ही बैठा हुआ था कहा, खुदा ये नहीं देखता कि किसी इंसान के सर पर क्या रखा है। खुदा तो देखता है कि उसके सर के अंदर क्या है, उसके अज़ाइम क्या और उसकी नीयत क्या है और वो सोचता क्या है। 1 लाख दिरहम की टोपी।
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरान होकर पूछा, क्या हुर्मुज इतनी कीमती टोपी पहनता है? फारस की शहनशाही का एक दस्तूर है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, उनके यहाँ हसब नसब और हैसियत को देखकर उसके मुताबिक टोपी पहनाई जाती है जो उनके शहनशाह की तरफ से अता होती है। ज्यादा कीमती टोपी सिर्फ वो अफराद पहनते हैं जो आला हस्ब नसब के हों और जिन्होंने रियाया में भी और शाही दरबार में भी तौकीर और वजाहत हासिल कर रखी हो। इस वक्त हुर्मुज सबसे ज्यादा कीमती टोपी पहनता है। कोई और 1 लाख दिरहम की टोपी नहीं पहन सकता। इस टोपी में बेशकीमत हीरे लगे हुए हैं और इसकी कलगी भी बहुत कीमती है। फिरौनों ने अपने सरों पर खुदाई की टोपियां सजा ली थीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कहाँ हैं वो? कहाँ हैं उनकी टोपियां? मुझे किसी की बेशकीमत टोपी मरूब नहीं कर सकती, ना किसी की टोपी तलवार के वार को रोक सकती है। मुझे ये बताओ कि आतिश परस्तों की फौज लड़ने में कैसी है और मैदान जंग में कितनी तेजी से नक्लो हरकत करती है। फारस के सिपाही की ज़रा और हथियार देखकर खौफ सा आता है। मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया, सर पर लोहे की जंजीरों के खुद, बाजुओं पर किसी और धात के खोल और टांगे आगे की तरफ से मोटे चमड़े या धात से महफूज की हुई। हथियार इतने कि हर सिपाही के पास एक बर्छी, एक तलवार, एक वजनी गरज, एक कमान और एक तरकश होती है जिसमें हर सिपाही 30 तीर रखता है। और लड़ने में कैसे हैं? जुर्रत और अक्ल से लड़ते हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, उनकी दलेरी मशहूर है। मुसन्ना, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि आतिश परस्तों के सिपाही कितने कमजोर हैं और उनकी जुर्रत की हद क्या है? उनकी जुर्रत की हद आहनी खुद और बाजुओं और टांगों पर चढ़ाए हुए खोलों तक है। वो नहीं जानते कि जज्बा लोहे को काट दिया करता है। लोहे की तलवार और बर्छी की अन्नी जज्बे को नहीं काट सकती। ज़रा और धात या चमड़े के खौल हिफाजत के झूठे जरिए हैं। एक खोल कट गया तो सिपाही अपने आप को गैर महफूज समझने लगता है। फिर उसमें इतनी सी जुर्रत रह जाती है कि वो अपने आप को बचाने की और भागने की कोशिश करता है। अल्लाह के सिपाही की ज़रा उसका अकीदा और ईमान है। मैं तुम्हें फारसियों की एक और कमजोरी दिखाऊं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिद से कहा, सालारों और कमानदारों को फौरन बुलवाओ, फारी तौर पर काज़मा की तरफ कूच करो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया और कूच बहुत तेज हो। हुर्मुज हफीरा के इलाके में पड़ाव किए हुए था। वो काज़मा से अपनी फौज को यहाँ लाया था क्योंकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर हफीरा की तरफ आ गया था। अब ये लश्कर फिर काज़मा की तरफ जा रहा था। दोनों फौजों की चंद एक घुड़सवार या एक दूसरे की खैमागाह को देखते रहे। हुर्मुज को इत्तला मिली कि मुसलमानों का लश्कर काज़मा की तरफ कूच कर गया है, तो हुर्मुज ने अपनी फौज को काज़मा की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। हुर्मुज को उबला की बहुत फिक्र थी। ये ईरानियों की बादशाही का बहुत अहम शहर था। ये तिजारती मरकज था। हिंदुस्तान को ताजिरों के काफिले यहीं से जाया करते थे और हिंदुस्तान खुसूसी सिंध का माल इसी मकाम पर आया करता था। ये ईरान का फौजी मरकज भी था। इस इलाके के रहने वाले मुसलमानों को दबाए रखने के लिए उबला में फौज रखी गई थी। हुर्मुज की कोशिश ये थी कि मुसलमानों का लश्कर उबला तक न पहुंच सके। हुर्मुज को उबला पहले से ज्यादा खतरे में नजर आने लगा क्योंकि मुसलमान उबला के जुनूब में काज़मा की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों के लिए कूच इतना मुश्किल न था जितना ईरानियों के लिए दुश्वार था। मुसलमानों के पास ऊंट और घोड़े खासे ज्यादा थे। सिपाही हल्के फुल्के थे। वो आसानी से तेज चल सकते थे। उनके मुकाबले में ईरानी सिपाही ज़रा और हथियारों से लदे हुए थे, इसलिए वो तेज नहीं चल सकते थे। 1-2 दिन पहले ही वो काज़मा से हफीरा आए थे। इस कूच की थकन अभी बाकी थी कि उन्हें एक बार फिर कूच करना पड़ा, और वो भी बहुत तेज, ताकि मुसलमानों से पहले काज़मा के इलाके में पहुंच जाएं। उस कूच ने रास्ते में ही उन्हें थका दिया। हुर्मुज की फौज जब काज़मा में मुसलमानों के बिल्कुल मुकाबिल पहुंची तो निडाल हो चुकी थी। मुसलमान सिपाही सहराई लड़ाइयों और सहरा में नकलो हरकत के आदी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुर्मुज को ये तासुर देने के लिए कि वो अपने लश्कर को आराम नहीं करने देगा, लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुद कल्ब में रहे। दाएं और बाएं पहलुओं की कमान आसिम बिन अम्र और अदी बिन हातिम के पास थी। आसिम बिन अम्र कैका बिन अम्र के भाई थे और अदी बिन हातिम कबीला तय के सरदार थे, जो दराज कद, मजबूत जिस्म वाले बड़े बहादुर जंगजू थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी फौज को लड़ाई की तरतीब में करते देखकर हुर्मुज ने भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कल्ब में वो खुद रहा और दोनों पहलुओं की कमान शाही खानदान के 2 अफराद कबाज और अनुशजान को दी। हुर्मुज देख रहा था कि उसकी फौज पसीने में नहा रही है और सिपाहियों की सांसें फूली हुई हैं। उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन मुसलमान जंगी तरतीब में आ चुके थे। हुर्मुज ने अपनी फौज की तरतीब ऐसी रखी हुई थी कि काज़मा शहर उसकी फौज के पीछे आ गया। उनके सामने रेगिस्तानी मैदान था और एक तरफ बेआबो गया टीला नुमा पहाड़ियों का सिलसिला था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को इस तरह आगे बढ़ाया कि ये पहाड़ी सिलसिला उनकी पुश्त की तरफ हो गया।
अप्रैल 633 ईस्वी के पहले हफ्ते का एक दिन था जब मुसलमान पहली बार आतिश परस्त ईरानियों के मुकाबले में आए। अगर खालिद बिन वलीद मारा जाए तो ये मार्का बगैर लड़े खत्म हो सकता है। हुर्मुज के एक सालार ने उसे कहा, मुसलमान जो इतनी दूर से आए हैं अपने सालार की मौत के बाद हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। फौज से कहो जंजीरें बांध लें। हुर्मुज ने सालार से कहा, मैं उनके सालार का बंदोबस्त करता हूँ, सबसे पहले यही मरेगा। उसने सालार को भेजकर अपने मुहाफिजों को बुलाया और उन्हें कुछ बताया। जंजीरें बांध लेने का मतलब ये था कि ईरानी फौज के सिपाही अपने आप को इस तरह जंजीरों से बांध लेते थे कि 5 से 10 सिपाही एक लंबी जंजीर में बंध जाते थे। उनके दरमियान इतना फासला होता था कि वो आसानी से लड़ सकते थे। जंजीरें बांधकर लड़ने से एक फायदा ये होता था कि कोई सिपाही भाग नहीं सकता था। दूसरा फायदा ये कि उनके दुश्मन के घुड़सवार जब उन पर हल्ला बोलते थे तो सिपाही जंजीरें सीधी कर देते। जंजीरें घोड़ों की टांगों के आगे आ जाती और घोड़े गिर पड़ते। लेकिन जंजीरों का बहुत बड़ा नुकसान ये था कि एक जंजीर में से बंधे हुए सिपाहियों में से 1-2 जख्मी या हलाक हो जाते तो बाकी बेबस हो जाते और दुश्मन का आसान शिकार बनते थे। इस जंग को जो हुर्मुज और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान लड़ी गई जंगे सलासिल यानी जंजीरों की जंग कहते हैं। मुसलमानों ने जब ये देखा कि ईरानी अपने आप को जंजीरों से बांध रहे हैं तो वो हैरान होने लगे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, वो देखो फारसी अपने आप को हमारे लिए बांध रहे हैं, फतह हमारी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह ने इनके दिमागों पर मोहर लगा दी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ सोचकर काजिमा से हफीर और हफीर से काजिमा का कूच किया था। वो फायदा उन्हें नजर आ गया था। हुर्मुज की वो फौज जो ज़रा और हथियारों से लदी हुई थी लड़ाई शुरू होने से पहले ही थक गई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरानियों को आराम की मोहलत ही नहीं दी थी। अब ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोच लिया कि वो क्या चाल चलेंगे और ईरानियों को किस तरह लड़ाएंगे। हुर्मुज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों फौजों के दरमियान ऐसी जगह आकर रुक गया जहां जमीन कटी फटी और कहीं कहीं टीले थे। उसके मुहाफिज उससे कुछ दूर आकर रुक गए। कहाँ है खालिद? हुर्मुज ने ललकार कर कहा, आ पहले मेरा और तेरा मुकाबला हो जाए। ये उस जमाने का दस्तूर था कि जंग शुरू करने से पहले दोनों फौजों के सालार जाती मुकाबलों के लिए एक दूसरे को ललकारते थे। दोनों फौजों के आदमी इनफरादी तौर पर आगे जाकर तलवारों से भी लड़ते थे और कुश्ती भी करते थे। नतीजा दोनों में से किसी एक की मौत होता था। जंगे सलासिल में हुर्मुज ने खुद आगे आकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। हुर्मुज माना हुआ जंगजू और बहादुर आदमी था। तेगजनी की महारत के अलावा उसके जिस्म में बहुत ताकत थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 48 साल हो चुकी थी। वो जंगी चालों के माहिर थे। उनके जिस्म में अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन हुर्मुज ज्यादा ताकतवर था। उसकी ललकार पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और हुर्मुज के सामने जा रुके। हुर्मुज घोड़े से उतरा और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाल ली। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ बढ़ कर वार किए। पैंतरे बदले, घूम घूम कर एक दूसरे पर आए, मगर तलवारें आपस में ही टकराती रहीं। फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों और पैंतरों में फुर्ती आ गई। दोनों फौजें शोरो गुल बर्पा कर रही थी। हुर्मुज महसूस करने लगा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार से बच नहीं सकेगा। वो तेजी से पीछे हट गया और उसने तलवार फेंक दी। तलवारें फैसला नहीं कर सकेंगी, हुर्मुज ने कहा। आ खालिद, हथियार के बगैर आ और कुश्ती लड़। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार फेंककर कुश्ती के लिए आगे बढ़े और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कुश्ती में हुर्मुज का पल्ला भारी नजर आता था, लेकिन मुअर्रिख लिखते हैं कि हुर्मुज की चाल कुछ और थी। उसने अपने मुहाफिजों को पहले ही बता रखा था कि जब वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हिलने के काबिल ना रहें, तो मुहाफिज दोनों को इस तरह घेरे में ले लें कि उनकी नीयत और इरादे पर शक ना हो, यानी वो तमाशाई बने रहें और उनमें से एक मुहाफिज खंजर निकालकर खालिद का पेट चाक करते। जंगजू इस तरह धोखा नहीं दिया करते थे, लेकिन हुर्मुज कमीनगी की वजह से मशहूर था। हुर्मुज के मुहाफिज आगे बढ़ाए और अपनी फौज की तरह नारे लगाते नरगे की तरतीब में होते गए। वो घोड़ों पर सवार नहीं थे। वो घेरा तंग करते गए, हत्ता के दोनों के करीब चले गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तवज्जो बढ़ गई। हुर्मुज ने फुर्ती से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों बाजू इस तरह जकड़ लिए कि उसके बाजू खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की बगलों में थे। मुहाफिज और करीब आ गए। हुर्मुज ने अपनी जुबान में मुहाफिजों से कुछ कहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी जुबान तो न समझ सके, इशारा समझ गए। उन्होंने खतरे को भांप लिया और जिस्म की तमाम तर ताकत सर्फ करके इतनी जोर से घूमे कि हुर्मुज को भी अपने साथ घुमा लिया। फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक जगह खड़े घूमते रहे। हुर्मुज के पांव जमीन से उठ गए।
खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुर्मुज़ के बाजू अपनी बगलों में जकड़ लिए थे और अपने हाथ हुर्मुज़ की बगलों में ले जाकर उसे घुमाते रहे। इस तरह मुहाफिजों का दायरा खुलता गया और उनमें से किसी को भी आगे बढ़कर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये दाव ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वो थक चुके थे। अचानक एक तरफ से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया जिसे हुर्मुज़ के मुहाफिज ना देख सके। घोड़ा मुहाफिजों के दायरों को काटता गुजर गया और 3 मुहाफिज जमीन पर पड़े तड़पने लगे। उनमें से एक को घोड़े ने कुचल डाला था और 2 को घुड़सवार की तलवार ने काट दिया था। घोड़ा आगे जाकर मुड़ा और फिर हुर्मुज़ के मुहाफिजों की तरफ आया। मुहाफिजों ने अब उससे बचने की कोशिश की, फिर भी 3 मुहाफिज गिरे और तड़पने लगे। बाकी भाग गए और सवार अपनी फौज से जा मिला। ये सवार नौजवान क़ैक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अम्र थे, जिन्हें खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुमक के तौर पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भेजा और कहा था कि जिस लश्कर में क़ैक़ा जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। उस सवार से नजरें हटाकर सब ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और हुर्मुज़ को देखा। हुर्मुज़ पीठ के बल जमीन पर पड़ा था और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी पीठ पर बैठे उसके सीने से अपना खंजर निकाल रहे थे। खंजर से हुर्मुज़ का खून टपक रहा था। क़ैक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुर्मुज़ के मुहाफिजों की नीयत भांप ली थी और किसी के हुक्म के बगैर घोड़े को एड़ लगाकर मुहाफिजों पर जा हल्ला बोला और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बचा लिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हुर्मुज़ की लाश से उठे। हुर्मुज़ की 1 लाख दिरहम की टोपी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में थी और उसके खून में लिथड़ा हुआ खंजर बुलंद करके खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को खुले हमले का हुक्म दे दिया। उनके पहले से दिए हुए अहकाम के मुताबिक मुसलमान लश्कर के दोनों पहलू खुल गए और उसने दाएं और बाएं से ईरानियों पर हमला किया। ईरानी अपने हुर्मुज़ जैसे सालार की मौत से बददिल हो गए थे, लेकिन अपनी रिवायती शुजाअत से वो दस्तबरदार ना हुए। उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत खासी ज्यादा थी। हथियारों और घोड़ों के लिहाज से भी उन्हें बरतरी हासिल थी। वो मुसलमानों के मुकाबले में जम गए। नजर यही आ रहा था कि ईरानियों को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी, या ये कि उन्हें शिकस्त देने के लिए बेशुमार जानें कुर्बान करना पड़ेंगी। ईरानी सिपाही 5-5, 7-7, 10-10 एक-एक जंजीर से बंधे हुए थे और हर तरफ से आने वाले हमले रोक रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें थकाने के लिए घुड़सवारों को इस्तेमाल किया। घुड़सवारों ने प्यादों पर इस तरह हमले शुरू कर दिए कि प्यादों को दाएं बाएं दौड़ना पड़ता। अपने प्यादों को भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी तरह इस्तेमाल किया। ईरानी प्यादों को भागना दौड़ना पड़ा। उनके मुकाबले में मुसलमान तेजी से हरकत कर सकते थे। आखिर ईरानियों में थकन और सुस्ती के आसार नजर आने लगे। उन्होंने अपनी रिवायत के मुताबिक जो जंजीरें बांध रखी थी वो उनके पांव की बेड़ियां बन गई। हथियारों की बरतरी वबाले जान बन गई। ईरानियों की तंजीम और तरतीब बिखरने लगी। उनके कल्ब की कमान तो पहले ही हुर्मुज़ के मरते ही खत्म हो गई थी। उनके पहलुओं के सालारों कबाज और अनुशजान ने शिकस्त यकीनी देखी तो पसपाई का हुक्म दे दिया। पसपा वही हो सके जो जंजीरों में बंधे नहीं थे। उनमें ज्यादातर घुड़सवार थे। कबाज और अनुशजान पहलुओं से अपनी फौज की बहुत सी नफरी बचाकर ले गए, लेकिन कल्ब के हजारों सिपाही मुसलमानों के हाथों कट गए। ये तो आतिश परस्तों का कत्लेआम था जो सूरज गुरूब होने के बाद तक जारी रहा। शाम तारीख हो गई तो ये खूनी सिलसिला रुका। मुसलमानों ने एक बहुत बड़े ताकतवर दुश्मन को बहुत बुरी शिकस्त देकर साबित कर दिया कि नफरी की अफराद और हथियारों की बरतरी से फतह हासिल नहीं की जा सकती। जज्बा लड़ा करता है। अगले रोज माले गनीमत इकट्ठा किया गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया। 4 हिस्से अपने लश्कर में तकसीम कर दिए और एक हिस्सा मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया। हुर्मुज़ की 1 लाख दिरहम की टोपी भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा को भेज दी। खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये टोपी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस भेज दी, क्योंकि जाती मुकाबलों में मारे जाने वाले का माले गनीमत जीतने वाले का हक होता है। ये टोपी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की मिल्कियत थी। ये देखो, बाहर आओ, देखो ये क्या है। मदीना की गलियों में कई आवाजें बुलंद हुईं। लोग दौड़ते हुए घरों से बाहर आने लगे। जानवर है? नहीं, खुदा की कसम, हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। ये जानवर नहीं, खुदा की अजीब मखलूक है। औरतें और बच्चे भी बाहर निकल आए। सबके चेहरों पर हैरत थी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। जिन्होंने खुदा की इस अजीब मखलूक को पकड़ रखा था वो हंस रहे थे, और वो आदमी भी हंस रहा था जो इस अजीब मखलूक की गर्दन पर बैठा था। ये क्या है? लोग पूछ रहे थे। इसे क्या कहते हैं? इसे हाथी कहते हैं। हाथी के साथ साथ चलने वाले एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, ये जंगी जानवर है। ये हमने फारस वालों से छीना है। जंगे सलासिल में जब ईरानी जरतश्त भागे थे तो ये हाथी मुसलमानों के हाथ आया था। तकरीबन तमाम मौर्रिखीन ने ये वाकया लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने माले गनीमत का जो 5वां हिस्सा खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था उसमें एक हाथी भी था। मदीना वालों ने हाथी कभी नहीं देखा था।
इस हाथी को मदीना शहर में घुमाया फिराया गया तो लोग हैरान हो गए और बाज डर भी गए। वो इसे जानवर नहीं खुदा की अजीब मखलूक कहते थे। हाथी के साथ इसका ईरानी महावत भी था। उस हाथी को चंद दिन मदीना में रखा गया। खाने के सिवा उसका कोई काम न था। मदीना वाले उससे काम लेना जानते नहीं थे। इसके अलावा सिर्फ एक हाथी से वो करते भी क्या। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके महावत को हाथी समेत रिहा कर दिया। किसी भी तारीख में ये नहीं लिखा कि ये हाथी मदीना से कहाँ चला गया था। दजला और फुरात आज भी बह रहे हैं। 1352 साल पहले भी बह रहे थे, मगर इस रवानी में और आज की रवानी में बहुत फर्क है। 13.5 सदियां पहले दजला और फुरात की लहरों में इस्लाम के अव्वलीन मुजाहिद के जोशीले और पुरअज़्म नारों का वलवला था। उन दरियाओं के पानियों में शहीदों का खून शामिल था। शम्मे रिसालत के शहदाई इस्लाम को दजला और फुरात के किनारे किनारे दूर आगे ले जा रहे थे। जरतश्त की आग के शोले लपक लपक कर मुसलमानों का रास्ता रोकते थे। मुसलमान बढ़ते ही चले जा रहे थे। उनका बढ़ना सहल नहीं था। वो फारसियों की शहनशाही में दाखिल हो चुके थे। उनकी नफरी और जिस्मों की ताजगी कम होती जा रही थी और दुश्मन की जंगी कुव्वत हैबतनाक थी। कभी यूं लगता था जैसे आतिश परस्त फारसियों की जंगी ताकत मुसलमानों के कलील लश्कर को अपने पेट में खींच रही है। अप्रैल 633 ईस्वी का तीसरा और सफर 12 हिजरी का पहला हफ्ता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु काजिमा के मकाम पर आतिश परस्त ईरानियों को शिकस्त देकर आगे एक मकाम पर पहुंच गए थे। उन्होंने 2 ही हफ्ते पहले ईरानियों को शिकस्त दी थी। ये पहला मौका था कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी शहनशाही से टक्कर ली थी जिसकी जंगी कुव्वत से जमीन कांपती थी। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि अभी हम इतनी बड़ी ताकत से टक्कर लेने के काबिल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस कर लिया था कि टक्कर लेना नागुज़ीर हो गया है, वरना जरतश्त मदीना पर चढ़ दौड़ेंगे। उनके अज़ाइम ऐसे ही थे। वो मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग थे और अपनी बादशाही में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया करते थे। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को यमामा से बुलाकर जरतश्तों के खिलाफ भेजा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। अब खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा था, अल्लाह की तलवार के बगैर हम फारस की बादशाही से टक्कर नहीं ले सकते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह साबित कर दिया था कि वो अल्लाह की तलवार हैं। फारस की शहनशाही की गद्दी मदाइन में थी। फारस का शहनशाह उर्दशेर मदाइन में शहनशाहों की तरह तख्त पर बैठा था। उसकी गर्दन उन शहनशाहों की तरह अकड़ी हुई थी जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। उसके तख्त के दाएं बाएं ईरान का हुस्न मचल रहा था। वो तख्त से उठने ही लगा था कि उसे इत्तला दी गई कि उबला के महाज से कासिद आया है। फौरन बुलाओ। उर्दशेर ने शाहाना रऊनत से कहा। इसके सिवा वो और क्या खबर लाया होगा कि हुर्मज ने मुसलमानों को कुचल डाला है। क्या हैसियत है अरब के इन बद्दुओं की जिन्होंने खजूर और जौ के सिवा खाने की कभी कोई चीज नहीं देखी। कासिद दरबार में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा और उसकी चाल बता रही थी कि वो अच्छी खबर नहीं लाया। उसने एक बाजू सीधा ऊपर किया और झुक गया। सीधे हो जाओ। उर्दशेर ने फातिहाना लहजे में कहा, हम अच्छी खबर सुनने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकते। क्या मुसलमानों की औरतों को भी पकड़ा गया है? बोलो, तुम खामोश क्यों हो? जरतश्त की 1000 रहमत तख्ते फारस पर कासिद ने दरबार के आदाब के ऐन मुताबिक कहा। शहनशाह उर्दशेर की शहनशाही, खबर क्या लाए हो? उर्दशेर ने गरज कर पूछा। आली मकाम हुर्मज ने कुमक मांगी है। कासिद ने कहा। हुर्मज ने? उर्दशेर चौंक कर आगे को झुका और उसने हैरान होकर पूछा, कुमक मांगी है? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है? क्या वो पसपा हो रहा है? हमने सुना था कि मुसलमान लुटेरों के एक गिरोह के मानिंद हैं। क्या हो गया है हुर्मज को? क्या उसने सिपाह को जंजीर से नहीं बांधा था? बोलो। दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया, जैसे वहां कोई भी ना हो और दरो दीवार चुपचाप हो। शहनशाह फारस की शहनशाही उफक तक पहुंचे। कासिद ने कहा, जंजीरें बांधी थीं, मगर मुसलमानों ने ऐसी चालें चली कि यही जंजीरें हमारी सिपा के पांव की बेड़ियां बन गईं। मदीना वालों की तादाद कितनी है? बहुत थोड़ी शहनशाह फारस। कासिद ने जवाब दिया, हमारे मुकाबले में उनकी तादाद कुछ भी नहीं थी, लेकिन दूर हो जाओ हमारी नजरों से। शहनशाह उर्दशेर गरजा और जरा सोच कर बोला, कारन को बुलाओ। कारन बिन करियानिस ईरानी फौज का बड़ा ही काबिल और दलेर सिपहसालार था। वो भी हुर्मुज की तरह लाख दिरहम का आदमी था और हुर्मुज की टोपी की तरह टोपी पहनता था। इत्तला मिलते ही वो दौड़ा आया। कारन, उर्दशेर ने कहा, क्या तुम इस खबर को सच मान सकते हो कि हुर्मुज ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए कुमक मांगी है? उर्दशेर ने दरबारियों पर निगाह दौड़ाई तो तमाम दरबारी उठ खड़े हुए। सब ताजीम को झुके और बाहर निकल गए। उर्दशेर कारन के साथ तन्हाई में बात करना चाहता था। क्या ये कासिद मुसलमानों का आदमी तो नहीं जो हमें धोखा देने आया हो? मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। कारन ने कहा,
मैदान जंग में जरा सी गलती पांसा पलट दिया करती है। अगर हुर्मुज ने कुमक मांगी है तो इसका मतलब ये है कि उसे कुमक की जरूरत है और उससे कोई गलती सरजद हो गई है। क्या मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि वो हमारी फौज को पसपा कर सकें? उर्द शेर ने कहा, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं, बेपनाह जुर्रत भी है। कारन ने कहा, वो अपने अकीदे की जंग लड़ते हैं। अबला के इलाके में हमने मुसलमानों को इस कदर जलील करके रखा हुआ है कि वो कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उन्होंने जमींदोज हमले करके और शबखून मार मार कर इस इलाके में कई चौकियां साफ कर दी हैं। आज तक उन्होंने जितनी जंगें लड़ी हैं उनमें उन्होंने किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में उनकी सिपाह खासी थोड़ी ही रही है। उनके पास घोड़ों की भी कमी थी, वो लड़ने वाले ही ऐसे थे। शहनशाह उर्द शेर ने कहा, उनमें कोई भी हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमानों ने मुकाबला कर लिया है। कारन ने कहा, और हमारा इतना जबरदस्त सालार हरमुज कुमक मांगने पर मजबूर हो गया है। शहनशाह फारस, दुश्मन को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में दयानतदारी से झांकना होगा। फारस की शहनशाही का तूती बोलता था, लेकिन हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि रूमी हम पर गालिब आ गए थे, और हमें ये हकीकत भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम रूमियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। इस नई सूरत हाल का जायजा दयानतदारी से लें। शहनशाह फारस, हुर्मुज ने अगर कुमक मांगी है तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान उसके लश्कर पर गालिब आ गए हैं। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम ही हुर्मुज की मदद को पहुंचो। उर्द शेर ने कहा, अगर हुर्मुज घबरा गया है तो उसकी मदद के लिए अगर उससे बेहतर सालार न जाए तो उसी जैसे सालार को जाना चाहिए। तुम ऐसा लश्कर तैयार करो जिसे देखते ही मुसलमान सोच में पड़ जाएं कि लड़ें या मदीना को भाग जाएं। फौरन कारन, फौरन। कारन ने उसे सलाम किया और लंबे लंबे ढग बरता चला गया। ईरानियों का सालार कारन बिन करियानिस ताजा दम लश्कर लेकर उबला की तरफ रवाना हो गया। वो पूरी उम्मीद लेकर जा रहा था कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके लौटेगा। वो अपने लश्कर को दजला के बाएं किनारे के साथ साथ ले जा रहा था। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। उसने मजार के मकाम पर लश्कर को दरियाए दजला पार कराया और जुनूब में दरियाए मौक्कल तक पहुंच गया। जब वो दरियाए मौक्कल के पार गया तो उसे हुर्मुज के लश्कर की टोलियां आती दिखाई दी। सिपाही बड़ी बुरी हालत में थे। तुम पर जरतश्त की लानत हो। कारन ने पहली टोली को रोककर और उनकी हालत देखकर कहा, क्या तुम मुसलमानों के डर से भाग आए हो? सिपा सालार हुर्मुज मारा गया। टोली में से एक सिपाही ने कहा, दोनों पहलुओं के सालार कबाज और अनुशान भी भाग आए हैं, वो शायद पीछे आ रहे हों। कारन बिन करियास हुर्मुज की मौत की खबर सुनकर सुन्न होकर रह गया। उसने ये पूछने की भी जुर्रत न की कि हुर्मुज किस तरह मारा गया है। कारन का सर झुक गया था। उसने जब सर उठाया तो देखा कि फारस के फौजियों की कतारें चली आ रही थी। अपने ताजा दम लश्कर को देखकर भागे हुए ये फौजी वहीं रुकने लगे। इतने में हुर्मुज की फौज के दूसरे सालार कबाज और अनुशजान भी आ पहुंचे। उन्हें दूर से आता देखकर कारन ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़ा चल पड़ा। कारन ने अपने दोनों शिकस्त खुर्दा सालारों के सामने जा घोड़ा रोका। मैं सुन चुका हूँ हुर्मुज मारा गया है, कारन ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाग आए हो। क्या तुम गमार और उजड़ अरबों से शिकस्त खाकर आए हो? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता कि तुम बुज़दिल हो और तुम इस रुतबे और ओहदे के काबिल नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए? क्यों नहीं चाहते? कबाज ने कहा, हम कहीं छुपने के लिए पीछे नहीं आए। हमें हुर्मुज की शेखियों ने मरवाया है। मैं तस्लीम करता हूँ कि इस्लामी फौज के पास बड़े ही काबिल और जुर्रत वाले सालार हैं, लेकिन वो इतने भी काबिल नहीं कि हमारी फौज को यूं भगा देते। कारन, अनुशजान ने कहा, हमारी फौजी क़यादत में यही सबसे बड़ी खराबी है जिसका मुजाहिरा तुमने भी किया है। तुमने अरब के उन मुसलमानों को उजड़ और गमार कहा है। हुर्मुज भी ऐसे ही कहता था, लेकिन हमने मैदान जंग में उसके उलट देखा है। तुमने उनमें क्या खूबी देखी है जो हम में नहीं? कारन ने पूछा। ये पूछो कि हम में क्या खामी है जो उनमें नहीं। अनुशजान ने कहा, हम अपने 10-10, 12-12 सिपाहियों को एक एक जंजीर से बांध देते हैं कि वो जम कर लड़ेंगे और भागेंगे नहीं। इसीलिए हम आमने सामने की जंग लड़ते हैं। मुसलमानों ने जब हमारी सिपाह को पाबंदे सलासिल देखा तो उन्होंने दाएं बाएं की चालें चलनी शुरू कर दी। हमारी सिपाह घूम फिर कर लड़ने से कासिर थी। ये थी वजह कि हमारा इतना ताकतवर लश्कर शिकस्त खा गया। हमारे पास इन बातों का वक्त नहीं। कबाज ने कहा, मुसलमान हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। उनके ताक़ुब में मुसन्ना बिन हारिसा 2000 नफरी की फौज के साथ आ रहे थे। मुसन्ना बिन हारिसा इस्लाम के वो शहदाई थे जिन्होंने ईरानियों के खिलाफ जमींदोज जंगी कार्रवाइयां शुरू कर रखी थी। उन्हीं की तरगीब पर अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने खालिद रदियल्लाहु अन्हु को बुलाकर ईरानियों के खिलाफ भेजा था। ईरानियों के ताक़ुब में जाना गैर मामूली तौर पर दलेराना इक़दाम था। ताक़ुब का मतलब ये था कि मुसलमान अपने मुस्तक़र से दूर हटते हटते ईरानियों के क़ल्ब में जा रहे थे, जहां उनका घेरे में आ जाना यकीनी था।
لیکن یہ خالد رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت بھی تھی جو مثنہ بن حارثہ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے۔ انہوں نے مثنہ بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مثنہ بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے، تو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانباز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مثنہ بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مثنہ کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مثنہ کے سوار بھی بکھر گئے۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھی آج یہ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو اور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔